Good morning, my dear students of class 7. Today we will discuss the mathematics of class 7 NCERT, right? So we were doing the chapter number 1, that was integers, right? So in the last video lecture we have done the exercise 1.3, right? And we have seen how to multiply the integers, right, along with their properties. In this video we will deal with the division of इंटीजर्स, राइट? हम इंटीजर्स का डिवीजन सीखेंगे और इंटीजर्स का जब हम डिवीजन करते हैं तो हम बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के तरह ही यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज और उनके एग्जाम्पल को यहाँ पर समझेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बोर्ड पे एक टेबल बनाया है, जैसे हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो हियर वी विल ऑल्सो डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, राइट? सो what are these properties? As we have seen the properties, so here we also look for the property, that is the closure property, commutativity, associativity, distributivity, and division by 0 and division by 1, right? So these are the name of the properties that we will discuss about the division of the integer. And here you can see in the second column I have written the identities, right, that we have to remember when we do the division of the integer. And along with that, in the last column you can see the examples. So I have made some examples for understanding the identities and the properties, right? So first of all we start with the first property, that is the closure property, right? So closure property में हम यहाँ पर देख रहे हैं, the identity is if suppose we have the two integer a and b and I am dividing a by b is an integer, right? अगर हम किसी एक इंटीजर को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर हम उसको दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो अगेन वी विल गेट द इंटीजर, बट दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द इंटीजर्स एंड दिस इज द रीजन आई हैव रिटन नॉट फॉर ऑल द इंटीजर a एंड b, राइट? हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो डिवीजन ही मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट? दैट इज नॉट नेसेसरी। इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीजन, राइट? वी कैन मेक द कंक्लूजन इंटीजर्स आर नॉट क्लोजर अंडर द डिवीजन, राइट? तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल बनाए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर -8 एंड इफ आई डिवाइड इट विथ -4 सो आई विल गेट 2, राइट? And if I divide -4 divided by -8, so I will get -4 upon 8, that is equal to 1 upon 2. So we know that 1 upon 2 is not an integer, right? Because 1 upon 2 it is the number which is not the integer and it is not the whole number also, it is in the rational form, right? So this rule, right, a divided b is an integer, that is not compulsory or necessary for all the integers, right? So we can make the conclusion integers are not closed under the division, right? Now we come to the second property, that is the commutativity. So what we can write here, a divided b, that is not equal to b divided a, right? So this condition is not also necessary over here. Suppose if I divide -8 with -4, right, तो जो भी resultant होगा, suppose if I divide it with -4, so I will get 2, right? And here if I divide -4 and -8, so I will get 1 upon 2, right? So 2 and 1 upon 2, they are not equal, right? So here again we can see the example, -9 divided by 3, so I will get -3, and if I divide 3 by -9, so I will get 1 upon 3, or we can say -1 upon 3. So this both left hand side and right hand side not equal, right? So इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं division of integer is not commutative, right? Division of integer is not commutative. Now we go to the property of associativity of the division. Here we can take the three integers and if we solve them, so that is not equal, right? यहाँ पर हम इसको क्या बताएंगे, not equal. If I divide a by b, so whatever the resultant integer, right, it is divided by c, so that is not equal to the right hand side, right? So one example I have taken over here for the understanding. If I divide -16 by 4, right, so what I will get, I will get -4, right? And if I divide -4 by 2, so I will get 2, right? Same here, what I can do, if I divide 4 by -2, so I will get -2, and if I divide -16 by -2, so I will get 8, right? So both the sides are not
इक्वल, राइट। आप इसको यहाँ पर करके भी देख सकते हैं, और आई कैन रिक्वेस्ट यू कि जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ तो आप अपने कॉपी पेन पे इसको साथ में नोट करते जाएं, और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप बुक में से ले सकते हैं, या आप अपने मन से कोई भी इंटीजर को यहाँ पर पुट करके डिवीजन देख सकते हैं। तो यू कैन फाइंड दैट, राइट, यू कैन फाइंड दैट डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, राइट, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द डिवीजन, राइट। नाउ वी डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में भी हम ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर, इफ आई मल्टीप्लाई a विथ b एंड इफ आई एड दैट रिजल्टेंट टू a इनटू b, राइट। यहाँ पर मैंने a को b से डिवाइड किया और जो भी रिजल्टेंट आया है उसको मैंने b और c के प्रोडक्ट के साथ क्या कर दिया है, डिवीजन के साथ मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों रिजल्ट जो होंगे दे आर नॉट इक्वल। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर आप, है ना। व्हाट आई कैन डू, I can take 16, 10 and 2. These are the two integers. So if I add these numbers, so I will get 12. And if I divide 16 by 12, so I will get the non-integer number. यानी कि वो integer नहीं होगा, right? और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये जो नंबर है हमारा 16 divided by 10, so I will get 1.6, right? यहाँ पर हम इसको 1.6 भी बोल सकते हैं, जो कि डेसिमल नंबर होगा, which is not the integer. And if I add that number with that 8, right? So again I will get the नॉन इंटीजर नंबर, यानी कि हमको जो नंबर मिलेगा वो डेसिमल होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन से दैट डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। सो दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। सो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना है फॉर द एक्सरसाइज 1.4 के लिए जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पर आपको यूटिलाइज होने वाली है। नाउ वी विल सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द डिवीजन बाय जीरो। अगर हम किसी इंटीजर को जीरो से डिवाइड कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इफ आई डिवाइड a इज अ इंटीजर एंड इफ आई डिवाइड इट विद द जीरो इज आल्सो द इंटीजर, राइट, वी हैव सीन इन द क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इसका डिवीजन करें तो ये वैल्यू जो होती है दैट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसका रिजल्ट जो है वो आएगा इंफिनिटी। इट इज नॉट डिफाइंड कि हम इसके रिजल्ट को कुछ सर्टेन वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी इंटीजर से अगर हम जीरो को डिवाइड करें सो अल्टीमेटली वी विल गेट जीरो, बट यहाँ पर जो a है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर जो a है वो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है एंड वी कैन ट्राई द एग्जांपल आल्सो। जैसे कि यहाँ पर मैंने -3 एक नेगेटिव इंटीजर लिया है और उसको मैंने जीरो से डिवाइड किया है। सो वी नो दैट दिस रिजल्ट, दिस डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, राइट। एंड इफ आई डिवाइड जीरो बाय -3 सो डेफिनेटली आई विल गेट जीरो, राइट। Now we come to the property division by 1. If I divide any integer by 1, so what will happen? The value of the integer does not affect it, right? So a is the integer and it is divided by 1, so the number is same. जो integer होगा उसकी कोई value change नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं -3 है, if I divide it 1, right, so it will be same as it is, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। So friends, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, ये 6 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई है, यही प्रॉपर्टी को हमको 1.4 में यूज करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, यहां पर आपके सामने है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.4 पे आ गए हैं और अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, राइट। तो अब हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली है, डिवीजन ऑफ इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उन प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन करके हम इस क्वेश्चन को समझ के और बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, -30 डिविजिबल बाय 1, राइट। -30 को 10 से डिवाइड करना, सॉरी नॉट 1, दैट इज 10, तो हमें यहाँ पर रिजल्टेंट नंबर मिलेगा -3, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज करी थी क्लोजर। अगर हम किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर हम डिवाइड करें तो हमको मिलने वाला जो नंबर होता है इंटीजर होता है, लेकिन हमने देखा कि वो इंटीजर सभी कंडीशन में यानी सभी a और b की वैल्यू के लिए नहीं होता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल वैसा ही है। इफ आई डिवाइड 50 बाय -5 सो आई विल गेट -10, so it is also based on the same property, right। -36 को हम -9 से डिवाइड करेंगे, so we know that 36 is coming in the table of 9, so I will get 4, right। माइनस और माइनस का डिवीजन होगा, so the value will get पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं -49 है और यहाँ पर 49 है, so we will get -1, right। So in the question number E, right, so this is the different question from the 4 that we have seen above, right। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
ब्रैकेट के अंदर -2 और 1 दिया हुआ है, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट नंबर होगा दैट वुड बी -1, और -1 से अगर हम 13 को डिवाइड करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो वी विल गेट -13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरली हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की है, राइट। एंड यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर F, आई एम डिवाइडिंग 0 बाय -12, राइट। तो अल्टीमेटली वी विल गेट 0, राइट। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी डिवीजन बाय 0, तो उसमें हमने यहाँ पर देखा था कि अगर किसी इंटीजर से अगर 0 को डिवाइड किया जाए तो वो नंबर भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। एंड द क्वेश्चन नंबर G, दैट आई डिवाइड -31 विद द ब्रैकेट -30 प्लस -1, राइट। तो -30 और +1 को +-1 को हम पहले सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू ब्रैकेट में दी होती है, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में दिया था तो पहले हमने ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया और फिर उसको हमने ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू को डिवाइड किया। तो -30 और 1 को अगर हम ऐड कर दें -1 को, सो वी विल गेट -31। सो हियर वी हैव टू डिवाइड -31 बाय -31, सो वी विल गेट 1, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर H, right. So first of all we can see we have to solve this bracket, right. -36 that is divided by 12, so I will get -3, and if I divide -3 by 3, so I will get -1, right. And what is the last question, we have the two brackets, right. इस bracket को आपको इस bracket से divide करना है। So here -6 plus 5 it will give us -1, and if it is divided by -1, so ये -1 कहाँ से आया है, -2 plus 1 that is equal to -1, so -1 से -1 को अगर हम डिवाइड करें तो हमको मिलेगा 1। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों की किस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से हमने यहाँ पर कर लिया है, राइट। आप चाहे तो इनके आगे प्रॉपर्टीज का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ वी डील विद द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। जब भी हम किसी इंटीजर का डिवीजन करते हैं तो वी कैन सी द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी विच इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको करने को कहा है वेरिफिकेशन, राइट। तो कहा है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c दैट इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको a, b और c की कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी हैं। यू हैव द टू वेरिफिकेशंस हियर a एंड b, तो दोनों ही कंडीशन में आपको a, b और c की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, राइट। और उन a, b और c की वैल्यू को आपको इस प्रॉपर्टी में, इस आइडेंटिटी में पुट करना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके बताना है क्या वो दोनों बराबर हैं या नहीं, राइट। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इसको आपके लिए सॉल्व करके रखा है। तो यू कैन सी दैट, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डू दैट। You can see this is the left hand side of the identity and this is the right hand side of the identity. So we have put the value of a, b and c. You can see the value of a is 12 and the value of b, that is -4, it is given over here, and the value of c is 2, right. Now we have to solve this portion, right, left hand side of the equation, right. So 12 divided by, first of all we solve this bracket, right, because this is the bracket, so we have to solve this first. So -4 plus 2 I will get -2, right, because here is the subtraction occur, right. तो -4 में से अगर हम 2 को subtract कर दें, so we will get -2, and if I divide 12 by -2, so I will get -6, right. So this is our left hand side. तो आइए अब अपन राइट हैंड साइड पे देखते हैं कि यहाँ पर भी हमको -6 मिलता है या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, तो यहाँ पर मैंने 12 डिवाइडेड बाय -4, so I will get -3, and 12 divided by 2 I will get 6. If I add these two values, so I will get 3. So as you can see that -6 that is not equal to 3, so we can verify that left hand side that is not equal to right hand side. It means that this identity is correct, right. Now we see the second question. Here the value of a is -10, the value of b that is 1, and the value of c that is 1, right. So here we can again put the value in the same identity of the distributivity. So what I will get, -10 divided by 1 plus 1, -10 divided by 1 plus -10 divided by 1. So if I add this two ones, right, so I will get 2. So if I divide -10 by 2, so I will get 5, right. On the right hand side what we can do, -10 divided by 1, so I will get -10, right. That is the same portion, -10 divided by 1, I will get again the same number, that is -10.
and if I add these two numbers, so I will get minus 20. So you can observe that minus 5 that is not equal to minus 20, right? So here we can say that also left hand side is not equal to right hand side. So it means that by this question we can say that the given identity of distributivity is very correct, right friends? So इस क्वेश्चन को और आंसर को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, और अब हम इसके बाद करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. So students, we have to come the question number 5 after the question number 2, because I am confident that after understanding the property and the example you are able to do the question number 3 and 4. I am very confident about you, right? So question number 5 is very tricky question, so it is somehow difficult. So इसको हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी हो. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि दोपहर 12 बजे, राइट, दोपहर में 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसा बताया जा रहा है कि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है. यानी कि अगर 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो दोपहर में 1 बजे जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा 2 डिग्री से, यानी कि टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरीके से आप देखेंगे हर घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम होता जाता है. तो आपको बताना है कि मिडनाइट तक, यानी रात के 12 बजे, मिडनाइट यानी रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे तक टेम्परेचर कितना हो जाएगा. अगर दोपहर 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे 2-2 डिग्री अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो रात के 12 बजे तक टेम्परेचर कितना होगा वो हमको यहाँ कैलकुलेट करना है. और आपको ये भी बताना है कि वो टाइम भी बताना पड़ेगा. आपको यहाँ पर 2 चीजें पूछी है. तो एक तो आपको पूछा है टेम्परेचर कितना होगा रात को 12 बजे, और दूसरा पूछा है कि वो कौन सा टाइम है जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट. तो हम इन दोनों के आंसर यहाँ पर लिखेंगे. तो इसको किस तरीके से आपको लिखना है, द टेम्परेचर एट 12 नून दैट इज गिवन 10 डिग्री सेल्सियस, और हमको यहाँ पर द रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस वो भी हमको दिया है कि टेम्परेचर कितना कम हो रहा है. सो हर घंटे जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, राइट. अब हम कैलकुलेट करेंगे द टेम्परेचर वुड बी एट मिडनाइट, यानी रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा. तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनिशियल टेम्परेचर है यानी दोपहर 12 बजे जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर में से हमको 12 into 2, राइट. तो अगर हम दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक अगर हम आवर्स को कैलकुलेट करें तो वो 12 घंटे होते हैं, और हर घंटे अगर 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 into 2, राइट. तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर जो है कम हो चुका है, राइट. तो हम देखेंगे इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, तो उसमें से हम 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. तो टोटल 12 घंटे में दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो टेम्परेचर कम हुआ है वो 24 डिग्री कम हुआ है. तो 24 डिग्री कम होने के बाद अब जो टेम्परेचर है रात को 12 बजे वो है -14 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो ये कैलकुलेशन हो गया. अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस वक्त पे, राइट, किस वक्त पे यानी रात को कितने बजे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें पर आवर के हिसाब से तो रात को 9 बजे जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट फ्रेंड्स. तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर नोट कर लीजिए, और अब हम इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन. सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 6, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिस क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर द 2 गर्ल्स राधिका एंड मोनिका, राइट. ये 2 लड़कियों के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया. इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है देयर इज एन एग्जामिनेशन, और उस एग्जामिनेशन में राधा और उसकी जो फ्रेंड है, राइट, दैट इज मोनिका, राइट, वो दोनों इस एग्जाम को क्या करती है, अटेम्प्ट करती है. और उस एग्जाम का एक रूल है, उसमें यह कहा गया है कि अगर आपका जवाब यानी कि आपका आंसर सही है तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे. दैट इज फॉर द पर आंसर और द पर क्वेश्चन. अगर आपका आंसर सही है तो आपको कितने मार्क मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, दैट इज 3 मार्क. लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और अगर वो गलत है, उसका आंसर अगर गलत है, तो उसके आपके 2 मार्क आपको दिए जाएंगे. कितने मार्क, -2, यानी कि -2 मार्क जो है वो कम कर लिए जाएंगे. यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर आपका आंसर सही है तो आपको +3 मार्क दिए जाएंगे, और अगर आपका आंसर गलत होगा तो -2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, राइट. और अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो उसके कोई भी मार्क नहीं होंगे, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल द एग्जामिनेशन इज टेकन, राइट. और राधिका ने उसमें से 20 मार्क स्कोर किए, राइट.
उसमें से 20 मार्क स्कोर जो उसने किए हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उसने जितने क्वेश्चन किए थे, टोटल क्वेश्चंस, उसमें से 12 क्वेश्चंस उसके राइट थे, यानी कि 12 आंसर उसने सही लिखे हैं, राइट। तो आपको पूछा गया है हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो यानी कि हमको ये बताना है कि उसके कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो उसने गलत आंसर के साथ अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि उसने उसका आंसर लिखा है लेकिन उसका आंसर जो है वो गलत है। तो हमको यहां पर बताना है। सो हाउ टू राइट द आंसर, दैट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका, दैट इज 20 मार्क्स, राइट, जो कि क्वेश्चन में ये हमको दिया हुआ है। दूसरी बात, हमको दिया है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो राधिका ने टोटल कितने करेक्ट आंसर लिखे हैं, 12 लिखे हैं। तो अब हम इसका मार्क जो है, मार्क्स जो उसको मिले हैं करेक्ट आंसर के लिए, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितने हैं, 12 है। सो 12, एंड हमने देखा कि अगर करेक्ट आंसर होगा तो उसके लिए 3 मार्क मिलेंगे, राइट। तो 12 इंटू 3 कर दिया जाएगा, तो 12 इंटू 3 यानी हो गए टोटल उसके 36 मार्क, यानी 12 क्वेश्चन के लिए जो उसके सही थे उसके लिए उसको टोटल 36 मार्क्स मिले हैं, राइट। लेकिन यहां पर ऐसा कहा गया है कि फाइनली शी हैज गॉट द 20 मार्क्स, राइट। तो यहां पर कुछ ना कुछ उसके आंसर गलत भी हुए होंगे, तो अब हमको कैलकुलेट करना है द मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, दैट इज 36 माइनस 20, यानी उसके टोटल मार्क होते हैं 36, लेकिन फाइनली उसको कितने मिले, 20 मिले, राइट। तो 36 में से हम 20 डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 16 मार्क्स, यानी कि 16 मार्क्स जो है उसके कट कर दिए गए, उतने जो मार्क्स है उसके कट कर दिए गए। तो अब देखते हैं कि यहां पर उसने कितने आंसर गलत लिखे हैं, राइट। सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2, यानी 16 मार्क डिडक्ट हुए उसके, तो 16 डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो देयर इज द 8 क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर कि उसने अपने पूरी एग्जाम में जो करेक्ट आंसर है वो 12 लिखे हैं और 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन अभी आधा ही हुआ है। इसकी फ्रेंड जो है, राधिका की जो दूसरी फ्रेंड है मोहिनी, उस मोहिनी के लिए आपको ये जो क्वेश्चन करना है ये आपको खुद करना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं कराया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अपनी एक PDF फाइल जो है वो आपके नंबर पे मैं सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको 1.4 के सभी क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। ये टॉपिक जो है आपका दैट इज इंटीजर, ये यहीं पे आपका एंड होता है, राइट। अब इसी के साथ हम नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।